بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم یہ معلم القرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا، ذرا اس کو دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایک دو چیزیں بڑی اچھی ہیں، آسان الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر من کے بعد الف لام کے بغیر ہو کوئی لفظ تو مفہوم ہوگا کسی یا ایک کا اضافہ ہوتا ہے بس۔ کیوں؟ یہ کامن ہو جاتا ہے، الف لام کے بغیر اگر کوئی ناؤن آتا ہے تو وہ کامن ہوتا ہے، اس لیے من کے بعد آیا آپ نے کہنا ہے کسی یا ایک سے، جیسے من نارن کسی آگ سے یا ایک آگ سے۔ من، اچھا یہ من جو ہے باس کے لیے بھی آتا ہے، باس کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا من کتابن کسی کتاب سے، من مائن پانی سے۔ اچھا میں نے کیا کہا؟ من آتا ہے تبعید کے لیے، یعنی کہ یاد رہے گا آپ کو یہ لفظ، یہ آتا ہے باس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نار ہے نا، اس کا ترجمہ کچھ نہ کیجیے گا بلکہ اس کا ترجمہ کیجیے گا باز، تبعید۔ یہ میں نے کیا لکھا؟ یہ تبعید ہے، ٹھیک ہے، یہ تبا ہے، ٹھیک ہے، تبعید باز کے لیے آتا ہے، باز۔ تو آپ نے باز کہنا، ٹھیک ہے، من نارن کچھ آگ سے، یا من مائن تھوڑا پانی سے، تھوڑے پانی سے، کچھ پانی سے۔ من عہدن کسی وعدے سے، من خوفن کسی خوف سے، من مشرکن کسی مشرک سے، من مشرکتن کسی مشرکہ سے، من عدوین کسی دشمن سے، من طینن کسی مٹی سے یا تھوڑی سی مٹی سے یا ایک مٹی سے، من اجرن تھوڑے اجر سے یا کسی اجر سے، من جوعن بھوک سے، کچھ بھوک سے، تھوڑی بھوک سے، من مسدن باندھ سے، باندھ وہ جو جسے ہم چٹائیاں بناتے ہیں، مسد اس کو کہتے ہیں، کھجور کے پتوں جیسے ہوتے ہیں، باندھ، تو وہ اس سے۔ یہ من مسدن کہاں آیا ہے سنا؟ سر یہ 30 پارے میں ہے، 30 پارے میں ہے، کہیں پہ؟ کہاں پہ؟ جلدی بتاؤ نا سنا۔ حبل من مسد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اچھا اس کا ترجمہ کرو سنا۔ والفتنة اکبر من القتل۔ سر کہاں پہ آپ نے ویسے بولا ہے ورڈ، کیا بولا آپ نے؟ یہ دیکھو، یہ لکھا ہے پنک کلر میں کر دیا لڑکیوں کے لیے، ہاں۔ اچھا، والفتنہ تو اکبر من قتل، اور فتنہ بڑا فتنہ ان میں سے قتل ہے، قتال یعنی دیکھو ترجمہ لفظی کرو اور جلدی نہ کرو، ہمیں کہیں نہیں جا رہے ہم۔ والفتنة وا، اور فتنہ تو فتنہ ہے، اکبر سب سے بڑا، من سے قتل قتل، ہاں کیا ترجمہ ہوا؟ قتل جو ہے وہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اچھا دیکھو اب ذرا آپ کو، آپ کی بہن ہے آمنہ، آمنہ بتاؤ ذرا۔ پھر وا کا مطلب ہے اور الف لام لگا ہوا ہے فتنہ کے ساتھ، تو یہ فتنہ جو ہے شاباش۔ اکبرو کا مطلب ہے سب سے بڑا، من سے قتلو جس نے قتل کیا، ہاں کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ تو یعنی قتل کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے، یا فتنوں اچھا میں سب سے ٹھیک، بڑا فتنہ قتل ہے، اچھا سمجھ آ رہی ہے سر؟ جان ہو گیا، جان ہو گیا۔ اچھا اب آتے ہیں ہم ذرا اس کی طرف، سارا سمجھاؤ ذرا، سارا سمجھاؤ ہمیں۔ سر واؤ اور ہے، ال جو ہے وہ فتنہ کو خاص کرنے کے لیے ال لگایا گیا ہے، الف لام۔ جاؤ نا آگے چلو نا۔ ہیلو، اچھا سمجھ لگا آواز نہیں جا رہی۔ اور اکبر وہ جو ہے یہ بڑا، من سے القتل قتلوں میں، قتل میں یہ فتنہ ہے سب سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم ذرا اپنی عائشہ کی طرف، عائشہ بتاؤ۔ جی سر، وا اور الفتنہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، وہی پرومیننٹ کرنے کے لیے، اور اکبر سب سے بڑا، من سے القتل القتلی قتل میں، تو قتل میں سے سب سے بڑا جو ہے قتل
वल फितना तो अकबर फितना तो हाँ फितनों में सबसे बड़ा फितना जो है वो कत्ल है नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम जरा अपनी, या बीनिश कर दें या फिर हरमैन कर दें। वो किधर चला गया मेरे ख्याल से सर एक मिनट यमुना, इनको करने दो। हाँ ये अच्छा चलो, दोनों नहीं करना चाहती। डॉक्टर नसरीन करना चाहेंगी? डॉक्टर नसरीन, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। हाँ, नसरीन नहीं करना चाहती, तो हम चाहते हैं फिर अपनी सुमेरा की तरफ। सुमेरा आपकी मेहमान है यहाँ पे। सुमेरा बताओ बच्चे, क्या तर्जुमा है इसका? आपने नहीं पढ़ा हुआ, खैर है फिर भी। हेलो सर, मैं कर रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आइए, अब आइए, जी जी आइए जी, सुनाए ना। क्या और और फितना जो है वो अकबर सबसे बड़ा है मिनल कत्ली। फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा बड़ा है। देखो भाई, अब आप देखा अपने सारे नालायको, सना नालायका, सारा नालायका, बीनिश नालायका, हरमैन नालायका, और कौन 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 है, आमना नालायका। डॉक्टर साहब से सुना आप लोगों ने तर्जुमा? अभी 10 दफा, 10 दफा नहीं, 10 के 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने बताया आपको तर्जुमा कर करके कि जब भी ऐसे आया करे आपने, और ये जो फितना है और ये जो बुग़्ज़ है और ये जो हसद है, जब भी ऐसे आया करे मुब्तदा, आपने ऐसे कहना है अलजो, और ये जो मौसम है जमील खूबसूरत है। कितनी दफा तर्जुमा ऐसे करवाया? क्या लड़कियां हैं, क्या लड़कियां हैं, जुर्माना करूं मैं इनको सबको? क्या लड़कियां? अव्वल सर आयशा फितना। भी थी। सर आयशा, आयशा के नाम भी आयशा लिखी। नालायका, आयशा भी है। आयशा को मैं क्या कहूँ, आयशा वो तो वल अंडरस्टूड सी बात है ना, इसलिए कुछ चीजें का नाम ना भी लें तो अंडरस्टूड ही होती है। वल फितना तो, और ये जो फितना है अकबर सबसे बड़ा है मिनल कत्ल, कत्ल से। हमने अकबर के माने में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आजान जब पढ़ रहे थे हमने कहा था कि अकबर दो चीजों के लिए आता है। ये आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और हमने ये भी कहा था कि ये कंपैरिजन करने के लिए भी आता है कि हाजा अकबर मिन हाजा, ये इससे बड़ा है, हाजा असगर मिन हाजा, ये इससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो मुकाबले के लिए भी आता है। यहाँ पर फितना है और कत्ल, दो चीजें हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फितना खड़ा करना, फसाद खड़ा करना, शर और फसाद फैलाना, ये कत्ल से भी ज्यादा जुर्म, बड़ा जुर्म है। और तो हरम में भी कोई आपको मिले ना, तो हरम में भी कत्ल कर दो। ये चक्कर था। अब जरा मैं दोबारा आता हूँ सना की तरफ। सना जान, ये सना नहीं, ओहो कौन थे ये, आयशा, आयशा, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, ये बताओ जरा। सर आप खाना भी नहीं खाना देते, एक सेकंड किधर ले, इस वक्त खाना शुरू कर दिया, कभी नाश्ता कर रही होती, मैं कैसे बात करूँ आपसे? शाबाश। सर आसिम जो इस वक्त टाइम पे आ गया, मुझे खाना दो खाना दो, अब फिर क्या करूं, शोहर की उस्ताद खिदमत का, जरूरी है ना। नहीं उस्ताद के हक से, और अल हक को अशोहरो अहक को अकबर मिन उस्ताद। अकबर वाह शोहर चलो जो सर ये है ना वो, चलो जो यार, शोहर सर है इस ना जो फिक्रे से सर इस फिक्रे से जो है ना वो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बहुत अच्छी से समझ आई है। चलो शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का। चलो एक को तो समझ आ गई ये हमारी कामयाबी हो गई। चलो दोनों में से एक को समझ आनी चाहिए, आयशा और सना में से। चलो ये हो गया, किस्सा जिंदाबाद हो गया। अब सारा जरा करो ये वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, क्यों अपने बैच का नाम बदनाम करती हो, तीनों का, अय्यमा और उसके साथ अय्यमा और जुम्ना का। सारा बताओ, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल। सारा, रऊफ, अच्छा चलो सारा नहीं करना चाहती, कोई और कर सकते, कोई जल्दी से कर दे यार, एक ही लफ्ज चेंज हुआ है बस। हाँ, और फितना जो है ज्यादा शदीद है कत्ल से, सख्त शाबाश, है, शदीद। हाँ कितने से भी ज्यादा सर शदीद है। इसमें भी कंपैरिजन ही हो रहा है। बिल्कुल, अकबर की शाबाश। जगह उन्होंने शिद्दत का वर्ड डाल दिया, बिल्कुल, ये देखो ना, अशद्दु। अकबर भी असल में, अकबर आपकी जो शेप है ना वो अशद में भी वही शेप है, लेकिन यहाँ पे दो दाल है, दो दाल। तो आप यूं समझ लो कि ये लफ्ज ऐसे लिखा हुआ है अशददो, ऐसे लिखा हुआ है, तो अशददो लफ्ज नहीं जचता, इसलिए अल्लाह पाक ने अशदो का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये भी मतलब यही है दोनों। शाबाश, इससे जो है ना आगे नहीं चल, शाबाश, चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह से। लो भाई, औ का सय्यिबिम मिनस समाए, औ का माना क्या है? या जैसे या फिर
کا सय्यबिन ये दो लफ्ज हैं, बताएं तर्जुमा करें। का जैसे सोये मिसाल। बारिश। हाँ बारिश। सय्यबिन, सय्यब कहते हैं बारिश होती है मूसलाधार बारिश, जो मोटी मोटी बारिश होती है, कतरे होते हैं, उसको कहते हैं। या फिर उस शख्स की मिसाल जो है वो बारिश की तरह है, मिनस समाई, जो आसमान से उतरती है। अच्छा, मा अनज़लल्लाहु मिनल किताब, कोई कौन तर्जुमा करेगा? करो, करे करे जी जल्दी से। माँ जो अंजला नाजिल किया गया, अल्लाह ने अंजला, अल्लाह ने नाजिल किया, मीन से अल ला, वो उसको मार्फा बनाया, अल किताब, किताब में से। हाँ अच्छा सना, माँ का कोई और माना भी हो सकता है, तर्जुमा बिल्कुल बदल जाएगा। देखो जैसे हाँ, देखो जैसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नाजिल नहीं, किया। अच्छा ठीक है, और भी हो सकता है तर्जुमा। हाँ जी बताएं, आयमा बताओ, हाँ नसरीन बताओ। माँ का मतलब नहीं भी हो सकता है। नहीं और जो भी, हाँ जो अल्लाह, देखो क्या भी। हाँ देखो ये भी सकता है ना कि अल्लाह ने नाजिल ही नहीं किया किताब में से, ये जो कह रहे हैं, जो हुक्म बता रहे हैं आपको, मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, अल्लाह ताला ने ये नाजिल नहीं किया किताब में से, बात समझ रहे हैं ना? तो ये भी हो सकता है तर्जुमा। शाबाश, ठीक है। अच्छा, वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब, मुज़हज़िही का माना जो है ना छोड़ दो, ये वोकैबुलरी में क्योंकि ये बड़ा रेयर है इसलिए इसको छोड़ दो। वमा हुआ मिनल अज़ाब का तर्जुमा कर दो। और नहीं है वो अजाब में से। हाँ देखो, वमा हम जो पढ़ रहे हैं ना, नहीं ये सबक क्या क्यों पढ़ रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि बाकी चीजें छोड़ दें, लेकिन मिनल अज़ाब का तो तर्जुमा कर दो कि किसी अजाब में से, अजाब में से, या खास अजाब है भाई, उस अजाब में से। शाबाश, ठीक है। अहसन में वमन, और कौन है, अहसनो सबसे खूबसूरत, मिनल्लाह अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत, कौन है, सिबगतन रंग के लिहाज से, सिबगत कहते हैं रंग को, सिबगा, सिबगतुल्लाह नाम होते हैं ना, सिबगतुल्लाह, तो सिबगत का मतलब होता है रंग। तो अल्लाह के रंग से ज्यादा हसीन कौन है, वलनबलुवन्नकुम, ये कितना बड़ा लफ्ज है, जरा देखो यहाँ, एक्चुअली यहाँ पे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है इस आयत में, बहुत बड़ा सबक है सारी जिंदगी। इस अपने दीवार पे लगा लो, जब भी रोने का दिल करे इसको पढ़ लिया करो। वलनबलुवन्नकुम, और लाम का मतलब होता है जरूर, ना नून का मतलब होता है हम, और जरूर हम, बला, बला मतलब होती है मुसीबत, बला, वैसे बला का लफ्ज अच्छा है, मुसीबत में डालेंगे। वन्ना, ये नून मुशद्दद जो आया है ये भी जरूर के लिए आया है, तो हम जरूर बिस जरूर बला में डालेंगे, तुम सबको। बला का मतलब जब क्रम में आता है तो इसका मतलब इम्तिहान होता है, आजमाइश। हम तुम सबको इम्तिहान में डालेंगे, जरूर भी जरूर डालेंगे। कौन से बला में? खुद ही बता दिया, बिशैइन थोड़े से, मिनल खौफी डर से, डर का इम्तिहान आएगा। कभी किस चीज का डर, कभी इज्जत का डर, कभी पैसों का डर, कभी भूख का डर, कभी छत का डर, कभी किस चीज का डर, जिंदगी में ये चलता रहेगा। ये दूसरे पारे में सूरह बकरा में ही अल्लाह ने फरमा दिया है, बस लिख लो अपने पास। मिनल खौफ, एक खौफ का बताया, इसका इम्तिहान सब पे आएगा, कोई नफ्स नहीं बचने वाला है इससे, सब पे खौफ आता है। दूसरा है वह मिनल खौफ वल वमिन जुई, जू, और हाँ जी, भूख का आएगा, भूख, भूख का खौफ सब पे आएगा, कोई अमीर कितना ही अमीर होगा, भूख का खौफ उस पे आएगा, इम्तिहान आएगा। उसके बाद है वलजूइ वनक़सिम मिनल अमवाल, और पैसों के कम होने का, अमवाल जो माल जायदाद और पैसे, ये खौफ सब पे आएगा भाई। ये इससे कोई अमीर भी, बड़ा से बड़ा अमीर भी इससे खाली नहीं है, इस डर से कि इसमें उस पे आता है ये खौफ, इम्तिहान है ना, तो रब ताला लेके आता है दिलों पे। तो इम्तिहान, ये नक्स मिनल अमवाल भी आएगा, नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, अनफुस का मतलब है तुम्हारी जानों में भी इम्तिहान होगा। तो जानों का इम्तिहान ये भी हो सकता है भाई कि मेरे अपनी जान में, मेरी आंख का मसला, मेरे कान का, मेरे दिल का मसला, मेरे सेहत का मसला, सेहत का मसला, सेहत जवानी के का मसला, 100 मसाइल है मेरे नफ्स के साथ। लेकिन इसका मसला एक और भी है, वो है रिश्तेदार, जो माँ है, बाप है, भाई है, बेगम है, बच्चे हैं, तो तुम्हारे दिल के करीब है, जिसको तुम अपना आप कहते हो, जान कहते हो, उन जानों में भी तुम्हारा इम्तिहान हो सकता है। कभी कोई फोत हो गया, कोई कभी बीमार हो गया, उसमें इम्तिहान और आजमाइश रखी जाएगी। और भी आजमाइश हो सकती है बीमारी के अलावा भी,
کہ اسی माँ बाप तुम्हारे लिए इम्तिहान बन जाए, हो सकता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इम्तिहान बन जाए, तुम्हारा बच्चे सर तुम्हारे लिए इम्तिहान औलाद बन के जाए. बारे में भी कहा गया है ना हाँ कुरान पाक में, बिल्कुल औलाद बिल्कुल, के बारे में, औलाद भी फितना है, और बिल्कुल फरमाया अल्लाह और ने, औरतों के औलाद बारे में फितना भी. है, औरतें भी है. फितना का मतलब है आजमाइश, वो आयत दूसरी है, और वो उसमें तो खैर वो तो और मानों में है, लेकिन यहाँ जरा थोड़ा सख्त है, उससे ज्यादा सख्त है. उसमें तो ये बताया गया है ना कि तुम्हारे लिए खूबसूरत कर दी है हमने ये चीजें, औलाद को, माल को, औरतों को, गाड़ियों को, ब्रांडेड गाड़ियों को, सवारियों को, और पता नहीं क्या क्या चीजें बता दी गई. और उसके बाद कहा कि ये चीजें सारी ऐसी हैं, अल्लाह रसूल की तरफ ही तवज्जो रखना वो. और यहाँ देखो क्या बताया गया है कि जरूर भी जरूर तुम्हारा इन चीजों से इम्तिहान लिया जाएगा. और आखिरी चीज है, आखिरी चीज भी सुन लो, वो है वसमरात. समरात का मतलब होता है सिला नहीं मिलता, समरात फ्रूट नहीं मिलता आपको. फ्रूट का मतलब ये भी कि बागों का, आपका अगर बाग है आपका कोई, तो बाग आपके बारिशों से और ज़ालाबारी से जो है वो तबाह हो जाएं. और ये भी हमारे लाखों लोग हैं ऐसे जो बागात इनके तबाह हो जाते हैं, इम्तिहान आता है उनपे. लेकिन हम भी तो है ना जो ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे भी तो मसाइल हैं, वो सर क्या ये समरात है? समरात खेती के माने में सर बागों, समरात वो मैंने क्या कहा है, आप बागों के उर्दू को माने में देख लो, आया, उर्दू में देख लो ना, समरात का मतलब क्या है? फ्रूट है ना यार. फल फल आप फल, उर्दू जी उर्दू सर में भी फल. कहते हैं ना, मुझे सब्र का फल मुझे नहीं मिला, मुझे अपने काम का सिला नहीं मिलता, मुझे अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता, फ्रूट नहीं मिलता आपको. आप इतना इखलास करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं, फिर भी आपको जो है ना वो सिला नहीं मिलता. अल्लाह पाक ने फरमाया इसी में इम्तिहान है, और मैंने करना है इम्तिहान, ये तुम्हारा ये करना है. तो क्या करना, फिर क्या फायदा है? ये इम्तिहान ले लेके और पर्चा भी आउट कर दिया तो क्या मिलेगा? फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और ए हबीब ये जो सब्र करेंगे ना इन इम्तिहानों में, सब्र करेंगे, वक्त ही खुद सारे फैसले करेगा, वक्त फैसला करेगा. साथ साथ अल्लाह पे भरोसा रखो. तो साबिरीन को, जो सब्र करेंगे, उनको आपने खुशखबरी सुना दें. बस क्या खुशखबरी सुना देंगे? वो आगे आ रहा है कि उनके लिए रहमत भी है मेरी, और उनके लिए मेरी हिदायत भी है, वो सीधे रास्ते पे हैं वो सारे लोग. अल्लाह पाक ने गारंटी दे दी है इसके बाद वाली आयत में. अल्लाह अकबर, ये तो बड़ा खिताब हो गया जुम्मे का यार. आगे चलते हैं. वमिन अन्नासी, और लोगों में से, मन वो भी हैं जो यशरी, यशरी नफ्सहू, यशरी का माने क्या करूं? मैं खरीदना, यशरी, जो यशरी नहीं, मैं ऐसे ना करूं, ऐसे देख लेता हूं. चलो आपके लिए, अपने लिए बीवी को, मैं यशरी जो नफ्सहू बतिगा मरदातिल्लाह. ये आयत करीमा है, बड़ी प्यारी आयत करीमा है, बहुत ही जबरदस्त. अल्लाह पाक ने फरमाया और कोई आदमी अपनी जान बेच देता है अल्लाह की मर्जी चाहने में, अल्लाह की खातिर अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों को भी बेच देता है. वाह भाई वाह, क्या बात है. सबसे बड़े ये लोग हैं, सबसे बड़े, जिनकी को हर चीज में वो राजी होते हैं. वो चाहे जिस हाल में उनको रखो वो राजी होते हैं, जिस हाल में रखो वो राजी होते हैं. वाह, बस सबसे बड़ा मकाम है रजा का मकाम, सबसे बड़ा मकाम है रजा. ये हासिल हो जाए ना, सारा सारे सारे झंझट खत्म हो जाती है, सारी दुनिया आसान हो जाती है, रजा का मकाम हासिल हो जाए सर ये तो मकाम मिल जाए तो वैसे किसी चीज की तलब नहीं रहती है. नहीं रहती, वो नहीं रहती. सिर्फ आपकी, ये तो राबिया बसरी थी ना, वो जो पानी का जी जी. वो उठा के जा रही थी, कहीं मैंने इबादत, मैं वो जरा वो जन्नत को जला दूं इस आग से, और पानी से दोजख को जो है ना वो बुझा दूं. मैं कोई इबादत इनके लिए ना करे, अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ यार, खालिस हो जाओ. वो इतनी ज्यादा वो हो गई थी ना. तो ये जी आता है, ये कैफियत आती है इंसान पे बाद औक़ात, अल्लाह के लिए खुलूस. वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई, वमा और जो कुछ अनज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से. ठीक है. वमा हम बिखारिजीन मिनन नार, यहाँ वमा का माना देखो और वहां माना का देखो. मा का माना यहाँ पर है, और नहीं है हम वो लोग, बिखारिजीना सब खारिज होने वाले, निकलने वाले, मिनन नारी आग से, वो आग से निकलने वाले नहीं हैं. बस हमने डाल दिया ना ऊपर से, बंद कर दिया मैंने, नहीं निकलेंगे वो आग से. वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, और फितना जो है, फितना फसाद फैलाना, ये कत्ल से भी ज्यादा शदीद है. लोग समझते नहीं है बात को. इंसानों में भी शैतान होते हैं और जिन्नात में भी शैतान होते हैं. आप लोग जो है दोनों से बना, रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी है, तो दोनों से पनाह मांगनी चाहिए. इंसानों में भी होते हैं, और वो देखो कत्ल नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो तुम्हारी जड़ें काट रहा है सही किस्म की. तो ये फितना है जो कि अशद मिनल कत्ल है, ये कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है. यहाँ एक और भी देख लेते हैं कि मिन के बाद अल वाले या अल के बगैर लफ्ज का ख्याल रखते हुए इन क़िताआत का तर्जुमा करे मिनल अमल, अमल से.
मिम्माई पानी से, मिनल कौली बात से, मिनल जिन्नी जिन्नात से, मिन किताबिन किताब से, मिनल नासी लोगों से, मिन अहदिन आहद से, मिनल हय्य जिंदा से, मिनल अमन अमन से, मिन नारिन आग से, मिन शैतान शैतान से, मिन मुशरिकतिन मुशरिक से मुशरिका से। अहबाब जरा इसको एक दफा पढ़ लेंगे आप अहबाब खुद, और इसका तर्जुमा कर देंगे आप, लेकिन कैसे करेंगे, मैं कैसे चेक करूंगा फिर कि आपने ठीक किया गलत किया? एक दफा यार सर देखिए ये आप। यूनिट नंबर बता दें, जी थोड़ा सर ये थोड़ा ऊपर करके यूनिट नंबर बता दें। ये यूनिट नंबर 2 है और ये 63 है, 63। देखो अच्छा यार, देखो 63। देखो सारे ये जो नीचे वाली क्लास हमारी है ना, ये सारी की सारी देख ले और इसका तर्जुमा ना खुद करके आए, ठीक है? इसको ये तर्जुमा ठीक सीख लो बस। मैं जिस दिन भी हम पढ़ेंगे बाद में ना इसको, तो हमने इससे मैंने पूछना है, आप लोगों ने करना है इसको यार। और आगे भी देख लो, आगे जल्दी से देख लो ताकि जल्दी से हम पढ़ लिया करें, ठीक है? इसको खत्म करें किताब को, ये तो बहुत लंबी हो गई ये किताब यार। मतलब इसका आपको फायदा है, इसका फायदा हो रहा है आपको अहबाब? जी सर, काफी जी चीजों सर, का काफी सर हाँ, ये किताब लंबी हो गई। इजी लग रही है बाकी से, हाँ ये बड़ा आसान, मुश्किल से। ये बहुत ग्रेजुअली आपको लेके जा रहे हैं ना, बड़ा ही जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम साथ में चीजें पढ़ते रहेंगे ताकि वो बाकी चीजें हमारी ग्रामर और जो हमारी बाकी चीजें हैं वो भी चलती रहें साथ साथ में। चलो चले अहबाब, बहुत शुक्रिया आप सब अहबाब का, और आपके जो रिजल्ट आपने दिया है बहुत जबरदस्त दिया है माशाल्लाह से। जिनके नंबर काटे गए हैं वो जल्दी की वजह से काटे गए हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके नंबर कटे हैं। ये देखो ना, ये जो हमारे 30 वाले हैं ये तो मुमताज है, मुमताज। लेकिन साथ जो 29 और 28 वाले हैं ये भी मुमताज हैं, ये तीनों मुमताज हैं। 28, 29, 30 वाले ये सारे के सारे एक्सीलेंट में आते हैं। और जो इससे नीचे है ना 25, 26 और 27 वाले, ये जय्यद जिद्दन है, यानी ये वेरी गुड के उसमें आते हैं। और उससे जो नीचे हैं वो गुड वाले हैं, और 20 से जो नीचे हैं वो पास हैं, ठीक है? बाकी सारे के सारे ऊपर जो हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत अच्छा दिया, शाबाश, बहुत जबरदस्त दिया। चलें अब आप इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलामत रहें, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, समातों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।